जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। थोड़ा शुकराना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ 24/7 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ। ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਸਟ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਲੰਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ। ਬੇਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੀ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਕਿ ਕੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਗਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी की संगत के माध्यम से गुरु के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं यूरोप से बोल रही हूँ। गुरु जी की बेटी अपना सत्संग गुरु जी के नाम से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी, जय आंटी जी। आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही हमारे शुक्राने सत्संग शेयर करते रहें। आप गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। गुरु जी आपको बहुत तरक्कियाँ दें, आगे बढ़ाएं, आपका चैनल बढ़े फूले और आपकी जो भी घर की समस्याएं हैं सब गुरु जी ठीक ठाक करें। संगत जी, मैं हर रोज गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, हो ही नहीं पाता। हर रोज टाल मटोल हो जाता है। अभी करती हूँ फिर करती हूँ, ऐसे कर कर के टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर सुबह उठती हूँ, फिर थोड़ी देर में करके दिन निकल जाता है। ऐसी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो हो नहीं पाता। संगत, गुरु जी के बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग के नंबर गाड़ियों पे हमें मिलते हैं जब बाहर निकलते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग 666, 999, 777 में बहुत मिलती है। हमारी खुद की गाड़ी भी 777 के नंबर की है। जोड़ लगा के ऐसे बनता है। गुरु जी की बहुत बड़ी अपरंपार कृपा है। गुरु जी ने बहुत दिया है, उनकी अपने काश से भी ज़्यादा दिया है। गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, दुनिया के दुनियादारी में चलने का सब कुछ दिया है। पर घर बार गाड़ी बच्चे सब कुछ दिया है। ब्लेसिंग देते हैं हर रोज़। जो भी थोड़ी मोटी तो प्रॉब्लम हर घर में होती है। कभी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, अभी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है, थोड़ा थोड़ा करके हमारा माइंड है जो इतना सुकून सा हो गया है। बस कोई गुस्सा नहीं करता एक दूसरे का, वैसे जैसे पहले करता था। पर बेटे का भी है, गुरु जी की कृपा से वो भी हौली हौली ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। गुरु जी कृपा कर रहे हैं, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। कोशिश कर रहे हैं करने की। कभी कभी बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, फिर सुबह उठ नहीं पाते। सुबह का गुरु जी का नाम सुबह लेने से देर हो जाती है। कोशिश तो करते हैं लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है। कभी ऐसे पहले हुआ नहीं था, नींद इतनी चढ़ जाती है कि उठने को मन ही नहीं करता। सोच के भी अलार्म भी लगाते हैं, फिर भी नहीं, पता नहीं कैसे उठ नहीं पाते। ये गुरु जी हमें माफ़ करना, हमारी गलतियों को माफ़ करना। आप हमें इसी तरह ब्लेसिंग देते रहना। गुरु जी, आप हर रोज़ कोई ना कोई आपकी अपने पार कृपा से हमें ब्लेसिंग देते हैं, चमत्कार करते हैं। जैसे परसों चौथ ही कुछ दिन पहले मेरी एक छाप है जो मैं
गवाच गई थी, ढूंढ रही थी उसको, मिल नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कहाँ रखी है। मेरे हस्बैंड को कभी कभी वो उसमें एक नाग है, वो उनको भी अच्छी लगती है, कभी वो ले लेते हैं, कभी मैं, उसने मुझे पढ़ा दिया कि तुम पहन लो। मैंने उसे पहना, मैंने बाद में पता नहीं कहाँ रख दी, ढूंढती रही, मैंने उसको ले लिया, मैंने आपको वापस, तुमने नहीं दी मुझे। वो कहते हैं नहीं मैंने आपको दी थी, आपने कहीं रखी है। मैंने सभी जगह ढूंढा पर नहीं मिली। फिर अचानक ही मैंने कहा अगर हमारे हक की कमाई की होगी तो मिल ही जाएगी, कोई बात नहीं, गुरुजी मैं खुद ढूंढ देंगे। वैसे कहकर मैं बैठ गई तो मेरी निगाहें वो एक मेरे बैग पे पड़ी। मैंने कहा शायद मैं इसमें तो नहीं रख दी। मैं खोला तो मेरी उसमें पड़ी थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन में उसका थॉट डाल दिया कि इस बैग में होगी। इसलिए संगत जी, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत कृपा है। इसी के साथ मैं गुरु सब संगत का शुक्राना करती हूँ, जो हमें बहुत से सत्संग सुनाते हैं जिससे हमारे कष्ट काटते हैं। इतने इतने अच्छे लगता भी है जी हमारे रिलेटेड है, इसीलिए हमारे इसी कारण हमारे वो सत्संग कट सुना के कष्ट काट रहे हैं। संगत जी एक मेरे साथ बात हुई। मेरी एक पाँव की उंगली पे बहुत जनवरी से लेकर एक ऐसी फिंसी सी थोड़ा सा गुम्मट सा बना हुआ था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म ही नहीं होता। कभी दुखता था, कभी नहीं दुखता था, पर वो है था। वो किसी गलत जुत्ती पाने से शायद कुछ हो गया था। जनवरी से लेकर 25 जनवरी से जब मैंने गुरुजी से, तो मैं अभी मई में जुड़ी हूँ। गुरुजी ने हमारी बात मई में पकड़ी है। फिर उसके बाद मैं सत्संग सुनती थी, वो बता रहे थे बीच में कोई संगत जी भी जल प्रसाद और चंदन लगाना चाहिए, जो मैं वो लगाया। वो धीरे धीरे मेरा वो ऊपर को उठा हुआ था, फिंसी जैसा था, लेकिन फिंसी नहीं थी, वैसे जैसे भौरी होती है ऐसा कुछ बना हुआ था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हुई है। ऐसे गुरु जी की अपार कृपा है। संगत जी ऐसी गुरु जी थोड़े थोड़े जो भी दर्द होता है, अभी परसों में मुझे पता चला, मैं थोड़ा दांतों में दर्द था। मैंने कहा पता नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हम दिखाने पड़ेंगे। कल ही मुझे मैसेज मिला, अगर आप गुड़िए दांतों में दर्द हो रहा है ना, सरसों के तेल में नमक मिला के उसकी मालिश करें। संगत जी आप यकीन मानो, मैंने एक दिन ही मिलाया, मेरे दांत ठीक है बिल्कुल। ऐसे गुरु जी की अपार कृपा है। बस उन्होंने तो कहा 5-7 दिन मिल, पर मैं अभी दो दफ़ा मिला है अभी तक, परसों और कल। आज जैसे ही गुरु जी का कोई मैसेज आता है, कोशिश करते हैं उनकी राय पे चलने की, जो बताते हैं उनको फॉलो करने की। संगत जी गुरु जी के पार कृपा है। गुरु जी की कृपा से घर में हर वक्त बानी लगाते हैं। सुन तो वो सब कभी थोड़ी देर बैठ के भी सुनते हैं, लेकिन चलती सारा दिन है। इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। आपके जरिए हमें कुछ ना कुछ हिंट मिलते रहते हैं, जिसको हम फॉलो करके अपने जीवन का सुधार करने की कोशिश करते हैं। गुरु जी आप बच्चों पे, घर वालों पे, सभी पे बहुत कृपा है। ऐसे ही बनाई रखना, मेहर करना। सब जो भी आप लोग पितरों की पूजा करते हैं, मैं तो नहीं करती, लेकिन हाँ जो भी है भगवान आगे अरदास करते हैं, भगवान सभी की आत्माओं को शांति दे, और उनका जो भी हो वो उनकी आत्मा है वो इधर उधर बांटने से मुक्त हो जाए, आपके चरणी लगे। गुरु पा आपकी बहुत बहुत कृपाएं हैं, जो आपके होते हुए आप किसी को भटकने तो नहीं देंगे गुरु पा, लेकिन फिर भी जिनका विश्वास होता है, वो उनका विश्वास है कि वो यहाँ पर आते हैं, पर आपकी पार कृपा है। आपको पता है
कौन सी आत्माएं कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, किधर उन्होंने जन्म लिया है। आप तो घट घट के अंतर्यामी हैं। आपकी कृपा से उनको भी, उन जो भी मानते हैं उनको भी मन को शांति दें, उनको थोड़े मोटे हिंट दें कि उनके पितर कहाँ हैं इनका। जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से जो बुलवा रहे हैं वो ही बोल रही हूँ। मुझे करना तो नहीं आता सत्संग, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ बोलने से। आप मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपका कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। आपका पल पल का शुक्राना, जुगों जुगों से आपके पता नहीं आपसे कितनी चीज हमको दिया है, जुगों जुगों से, जन्मों जन्म से, सब चीज़ों का शुक्राना, आगे का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ और मैं गुरुजी से अभी जस्ट जून में मुझे पहला सत्संग गुरुजी का आया था इनविटेशन, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था पहली बार में, पर अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी सुकून मिला वहाँ पे। और मैं शुक्राना गुरुजी का करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जैसे सब लोग बता रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा यूट्यूब पे कि आप शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रहे हो, तो सब लोग शेयर करते हुए मैंने देखे वहाँ पे। तो राज अंकल जी के थ्रू मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। तो शुक्राना गुरुजी बोलना, मतलब मुझे पहले नहीं लग रहा था कि क्यों बोलना है, इतना शुक्राना क्यों करना है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अब खुद से मुंह से निकलने लगा है कि शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। और वो कोई ना भी, मतलब मैं नहीं कर रही थी तो वो खुद में मेरे से आ गया अंदर से कि हाँ ये काम बना है तो शुक्राना करना चाहिए। और वो इतना शुक्राना 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 इतना निकल रहा है कि अब इतना बिलीव हो गया गुरुजी पे, वरना तो मुझे आज तक लाइफ में किसी पे ट्रस्ट नहीं हुआ। मैंने जिस पे भरोसा किया उसने ही मुझे धोखा दिया है, मतलब हर किसी ने मुझे धोखा दिया है। मैंने जिस पे आंख बंद करके विश्वास किया उसने ही मुझे बहुत बहुत मतलब रुलाया है। मैंने जिसको हंसाने की कोशिश की उसने ही मुझे रुलाया, तो बहुत बुरा लगता था इस चीज़ के लिए। और मैं जल्दी से किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, मतलब किसी पे भी, ना किसी इंसान पे, ना भगवान पे, किसी पे भी। पर मुझे ऐसे अच्छा लगता था कि मैं किसी सत्संग में जाऊँ तो थोड़ी शांति मिलती थी। और बट यहाँ जाके मुझे जो सुकून मिला है, और उसके बाद ही गुरुजी के मैसेजेस आना, जैसे मैं सत्संग में गई, उससे पहले मैंने गुरुजी को कभी भी कहीं भी नहीं देखा था, मतलब मुझे पता ही नहीं था, गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे। पहली सत्संग में गई उसके बाद से मुझे उसके मैसेजेस आना भी शुरू हो गए खुद से अपने आप ही। तो उसके बाद फिर से मुझे एक इनविटेशन आया अगस्त में फिर मैं गई सत्संग में, तो मैंने वहाँ से जल प्रसाद लिया। और जल प्रसाद लेने के बाद से, मतलब मेरे को हेल्थ इश्यूज भी थे बहुत सारे, तो धीरे धीरे वो हेल्थ इश्यूज ठीक होने लग रहे हैं। अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पर उस लेवल से मैं इतना नहीं हूँ कि जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा
लगता था कि तबीयत उठ ही नहीं पाएँगे, कुछ काम ही नहीं कर पाएँगे या फिर बड़ी प्रॉब्लम फेस करती थी डेली। पर वो चीज़ों से मैं बाहर निकल रही हूँ धीरे-धीरे। गुरुजी, आपको बोलना चाहती हूँ इस जो भी मतलब मेरे को हेल्थ इश्यूज़ है वो सब धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। प्लीज़ इनको जड़ से ख़त्म कर दो। आप प्लीज़ आप सब जानते हो। और एक चीज़ है जो बहुत ही चमत्कार हुई मेरे लाइफ़ में चमत्कारिक हुई कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बेटी है 7 साल की, उसको क्या है कि उसको जैसे ही वो स्कूल में बच्चे ज़िद करते हैं कि पराठा लेके जाना है मुझे लंच में, तो उसको क्या होता था कि जैसे ही वो पराठा खाती थी और स्कूल में अगर लंच में उसने पराठा खाया, तो वहाँ से वो बीमार ही आती थी हमेशा। मतलब उसके सर में दर्द रहता था, बोलती मम्मी सर में दर्द है और आके एकदम से वीक पड़ जाती थी। तो जब भी मैंने उसको पराठा देना, उसने ज़िद करनी कि खाना ही है, उसका मन करता था कि मैंने आज पराठा खाना ही खाना है और मैंने फिर मन भी नहीं करता था पर बच्चे का मन होता है तो फिर देना ही पड़ता है। और फिर जब भी पराठा खाना हो तभी उसको पता नहीं क्या उसमें प्रॉब्लम होती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वग़ैरह, तो हमेशा उसके सर में दर्द रहना और वॉमिटिंग करना, स्कूल में ही वॉमिटिंग कर देती थी। तो बड़ी मैं उस चीज़ से बड़ी वो होती थी कि ये जब भी लंच में कुछ ऐसा पराठा वग़ैरह लेके जाती है तो इसको प्रॉब्लम होती है। बाकी बच्चे भी लाते थे, अच्छे से खाते थे पर उनको कुछ नहीं होता था। पर ये बड़ी मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान थी। मेरे को बड़ा दुःख होता था देख के कि इतनी छोटी-सी एज में उसको वॉमिटिंग हो रही है और सर में दर्द, वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मैंने उसको बॉटल में जैसे मैं दूसरी बार सत्संग में गई तो मैंने उसको जल प्रसाद उसकी बॉटल में जो वाटर बॉटल है उसमें डाला और वो जब उसने वो लेके गई साथ में पराठा भी लेके गई, तो उसको मैंने अभी जब से जल प्रसाद मेरे पास है मैंने कितनी बार उसको पराठा देके भेज दिया है जो उसका फ़ेवरेट है, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत हैरान हुई इस चीज़ से, तो मुझे लगा ये चमत्कार सिर्फ़ जल प्रसाद का है, गुरु जी का है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मुँह से बहुत बार शुकराना निकला, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी। तो मेरे को ये उम्मीद नहीं थी पर पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया, तो बहुत ही मुझे सुकून मिला कि मेरे को मतलब इतना विश्वास हुआ कि सब लोग बोलते हैं सत्संग में कि हमारा ये काम बना है, हमारा ये काम बना है। तो गुरुजी ने मेरा सबसे पहला काम ये बनाया और मैं बहुत खुश हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी बोलते हैं लोग कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस टाइम में भी ऐसे गुरुजी हमारे पास हैं। मैं अब तक कहाँ थी, मतलब मैं कहाँ भटक रही थी। 12-13 साल से तो मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे ये लग रहा था मैं इतनी देरी मैंने कैसे कर दी गुरुजी को पाने में, मतलब कि मेरा बहुत लेट उनको मैंने पाया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो अभी भी मिले हैं वो मुझे, वो तो अभी भी देर नहीं हुई है पर फिर भी मैंने 13 साल तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही हूँ। तो अभी फिर अभी इस चीज़ से मुझे बड़ा वो मिला, सुकून मिला कि भई मेरी बेटी अभी वॉमिटिंग वग़ैरह उसको नहीं लगती है स्कूल में, तो मैं हमेशा अब जब भी पराठा देती हूँ तो जल प्रसाद उसकी बॉटल में डाल के ही भेजती हूँ और उसको कुछ भी नहीं होता, खुशी-खुशी घर आती है। और दूसरा मैं शेयर इसके लिए आपका गुरुजी अपार शुक्राना है। आप सच में चमत्कार करते हो, यकीन हो गया। और आपने बोला कि आपका मैसेज आया कि सत्संग शेयर नहीं करते, तो मुझे लगा मेरे पास है सत्संग शेयर करने के लिए, आपने मुझे चमत्कार दिखाया है, तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए गुरुजी ये मेरा पहला सत्संग है, इसको प्लीज़ स्वीकार करना और मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ करना। और गुरुजी ने मेरा दूसरा जो काम बनाया है, वो है कि जैसे बारिशों के मौसम में अभी बारिशें इतनी तेज़ हुई थी, तो हमारा छत पता नहीं अचानक से ना तीनों साइड से बड़ा टपकने लगा, बहुत ज़्यादा। मेरे को बड़ा डर हुआ कि ये क्या हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो पानी बहुत आ रहा था, हम टब रखते, उसके नीचे बाल्टी रखते, वो भी भर जाता पूरा। तो हम बार-बार उसको फेंकते, मतलब एक दिन तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने बस अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी मैं।
और मैंने शायद गुरुजी से भी नहीं बोला या फिर अरदास भी नहीं लगाई कि ये सब हो रहा है, आप इसको बंद करो। ये मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये सब भी गुरुजी कर सकते हैं। तो मैंने बस परेशान बहुत थी मैं उस चीज़ से, कि जैसे सामान खराब हो रहा था घर का, है ना? पानी छत पे पता नहीं क्या हो गया था कि तो वो चीज़ हो गया था। तो उसमें से फिर अगले दिन इतनी बारिश आई, मतलब इतनी तेज़ बारिश आई, पर एक भी बूँद पानी की नीचे नहीं गिरी। एक दिन हमने बहुत फेस किया, दूसरे दिन बिल्कुल गायब, मतलब कोई भी पानी टपका नहीं है। मतलब ऐसा हो गया कि इतनी तेज़ बारिश में भी, इतना घंटों बारिश होने के बाद भी बिल्कुल छत पे से पानी नहीं टपका, एक बूँद भी। मैं फ्रिज की साइड देख रही हूँ, साइड से किचन में सब जगह देख रही हूँ, पर कहीं से भी पानी नहीं आया। तो वो भी मेरे लिए ना बहुत चमत्कारिक हुआ। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हुआ कि ये कैसे हो सकता है? तो देखो ये तो मेरे लिए चमत्कार ही था कि भई पहले इतना पानी आ रहा था, टब भर-भर के हम बाहर गिरा रहे थे और दूसरे दिन ही वो पानी एक बूँद भी नहीं आ रहा वहाँ से, ऐसा क्या हो गया? तो मेरे को बड़ा चमत्कारिक लगा। अब जब भी बारिश होती है ना, बिल्कुल भी पता नहीं क्या हुआ है मुझे, तो वो गुरुजी का ही सब किया हुआ है। मुझे ऐसा ही लग रहा है गुरुजी ने किया है सब, तो ऐसे तो होता नहीं है, वरना चमत्कार ही है एक ये बहुत बड़ा। तो उस दिन मेरे मुँह से जो शुकराना निकला है, मतलब वो बहुत बार शुकराना मैंने किया गुरुजी का। अभी भी करती हूँ, शुकराना गुरुजी हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और गुरुजी आप बिना बोले ही इतना कुछ चमत्कार कर देते हो, तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ माँगूँगी नहीं। बस ये बोलूँगी कि आप हमेशा मेरे साथ रहो और मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो स्ट्रगल कर रही हूँ, उसमें कामयाबी दो। मेरे जो घर में थोड़ी बरकत नहीं है, पैसे रुके हुए हैं गुरुजी, सैलरी वग़ैरह आती नहीं है टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा-सा देखो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हमारे घर भी गुरुजी टाइम टू टाइम सैलरी आ जाए, हम लोग भी अपना अच्छे से गुज़ारा करें और हमें किसी से माँगना ना पड़े। तो गुरुजी इस चीज़ को देखो और मेरे बच्चों पे अपना बख़्शीश भरा हाथ रखो। मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा ब्लेस करो, गुस्सा बहुत है, गुस्सा मुझ में भी बहुत है गुरुजी, थोड़ा-सा हमारे अ, बीच में थर्ड पर्सन का रोल हो रहा है, मुझे शक हो रहा है कहीं न कहीं, तो उस थर्ड पर्सन को दूर करो हमसे। और गुरुजी और मेरे मम्मी-पापा को ब्लेस करो, उनको खुश रखो, बहुत दुखी हैं वो अपनी 2 बच्चों में, उनको सही रास्ता दिखाओ। 2 भाई हैं, भाभियाँ हैं, तो वो मम्मी-पापा को बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती, तो मैं चाहती हूँ वो अच्छे से उनकी केयर करें, उनके पास वही है और हम लोग तो ससुराल में हैं, तो इसलिए उनकी बड़ी चिंता होती है मुझे, वो लोग खुश रहें और आपस में मिल-जुल के रहें। और गुरुजी ये चाहती हूँ कि बस मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ उसमें कामयाबी बख्श दो, काम मैं करूँगी बस उसमें आप फल दे दो मुझे। और गुरुजी थोड़ा-सा ये हो गया है कि लोगों से भरोसा उठने लगा है, तो थोड़ा-सा मुझे उसके लिए भी मेरा माइंड सेट करो कि इतना ज़्यादा मैं वो ना हूँ कि मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया गुरुजी, थोड़ा-सा मुझे बताओ आप कुछ रास्ता दिखाओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे थोड़ा-सा तो मतलब ऐसा हो कि लोगों से बात कोई कर रहा है तो मुझे उसमें भी शक दिखाई देता है, शक की नज़रों से मैं देखती हूँ हर किसी को, क्योंकि धोखा बहुत खा चुकी हूँ, तो मैं किसी पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। इस वज़ह से मैं अच्छा फ़ील नहीं करती हूँ। मुझे बाद में महसूस होता है कि मैंने शायद उस पर्सन के साथ अच्छे से बात नहीं की या कुछ ऐसा। मतलब थोड़ा-सा गुरुजी ऐसा हो रहा है कि मैं किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ और मुझे हर शख़्स में धोखा दिखाई देता है। सिर्फ़ यही चीज़ हो रही है मुझे और बस इस चीज़ को दूर करो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ थोड़ा-सा और अपनी ब्लेसिंग मुझे चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स, और मेरी हेल्थ को ठीक करो, बच्चों की हेल्थ को ठीक करो गुरुजी। आप तो देखो अभी
2 चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, बट जब से आपसे जुड़ी हूँ काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मेरी सेहत भी अच्छी हो रही है धीरे-धीरे। ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था, बट अभी वो रिज़ल्ट दे रहा है, वो ट्रीटमेंट इतना रिज़ल्ट नहीं दे रहा था। तो गुरुजी, जब मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँगी तो वो सत्संग भी मैं शेयर करूँगी। जब मेरी दवाई बिल्कुल छूट जाएगी, तो मैं आपको वो सत्संग भी शेयर करूँगी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरुजी, सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी कई बार बोलते हैं कि तुझ में बहुत अकड़ आ गई है, तू शुक्राना सत्संग ही नहीं करती है, शुक्राना शेयर कर। लेकिन संगत जी, मेरे पापा जी कुछ दिन पहले मेरे पापा जी को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया था। थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी और दिमाग में वही चलता रहता है कि पापा एकदम से कैसे चले गए। तो गुरुजी जानते होंगे कि उनको मुक्ति देना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो परेशान थे अपनी बीमारी से। तो मैं अपने दिमाग को थोड़ी सी शांत रखने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, जो गुरुजी ने कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया होगा। तो संगत जी, गुरुजी तो मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, हमेशा ही रहेंगे, सबके अंग संग रहते हैं वो। बस उनको मन से मानने की ज़रूरत है, उन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। बस मैं शुक्राना सत्संग ही शेयर नहीं कर पा रही थी कुछ ऐसे ही कारणों से। और गुरुजी मेरे साथ हैं तो हमेशा ही मुझे दिखता रहता है। कभी 777 777 के दिखना, तितली तो हमेशा ही आसपास रहती हैं। और कभी कभी रोटी में ओम दिखना, ऐसा लगता है कि वो आसपास ही हैं। और कुछ भी जैसे कुछ शंका होती है कि कुछ ख़राब हो जाएगा, फिर एक मन में आता है कि नहीं, गुरुजी हैं साथ में, तो कुछ भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी के कई बार बहुत मैसेज आते हैं, टेलीपैथी से मैसेज देते हैं गुरुजी की, बेटा तेरे ऊपर जो काली क्रिया थी वो सब मैंने, जिसने तेरे ऊपर काली क्रिया की थी वो मैंने उसी पर लौटा दी है। अब उसके दिन खराब आने वाले हैं, तुझे जिसने प्रताड़ना दी थी वो अब खुद प्रताड़ित होने वाला है। और गुरुजी बोलते हैं कि तू अब करोड़ों में खेलेगी, तुझे नई गाड़ी, नया घर सब ब्लेस कर दिया है मैंने, तेरी हेल्थ ब्लेस कर दी है गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो धन्यवाद गुरुजी आपका मेरे साथ रहने के लिए। गुरुपा, आप एक मेरे पापा भले ही चले गए हैं, लेकिन एक पापा बन के आप मेरे साथ हो, हम सब बहनों के साथ हो। मेरे भाई नहीं हैं तो सब बहनों के साथ हो, सब बहनों के साथ रहना गुरुपा। आपका बहुत 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 धन्यवाद। कुछ ज़्यादा गलत मत होने देना। मेरी माँ की भी हेल्थ ब्लेस करना, वो भी बीमार रहती हैं गुरुजी। पापा के जाने के बाद वो भी ज़्यादा सोचती रहती हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी। आपने बोला था कि तेरी पैसे की जो तंगी चल रही है वो मैं दूर कर दूंगा, तो शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पैसों की तंगी दूर करने के लिए, पूरे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे बच्चों की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। और कई बार बोलते हो आपकी दुर्घटना होने वाली थी लेकिन मैंने बचा लिया, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मेरे पति की लंबी आयु ब्लेस करने के लिए, मेरी बीमारी ख़त्म करने के लिए। आप बोलते हैं कि तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही थी लेकिन मैंने उसको दूर कर दिया, तो शुक्राना गुरुजी। और जो भी मेरे साथ काली क्रिया कर रहे हैं उनको भी आप दंड दो गुरुजी। और मेरी अरदास मैंने जो की है आपसे, आप प्लीज़ वो मेरी अरदास सुन लो।
प्लीज़ गुरुजी अरदास सुन लो। मेरे बच्चों को तरक्की दो गुरुजी, मेरे पति को लंबी आयु दो, उनकी हेल्थ ब्लेस करो, मेरी माँ को, मेरी सभी बहनों के लिए सभी को ब्लेस करो गुरुजी, सभी बहनों के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए सबको ब्लेस करो गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। अंग संग रहिए, हमेशा अंग संग रहिए। हम तो नादान हैं, हम कभी ऐसा भूल भी जाते हैं, लेकिन आप हमें मत भूलना गुरुजी, हम लोगों को मत छोड़ना गुरुजी प्लीज़। हम लोग के अंग संग रहना, कोई कुछ गलत करे तो उसको आप संभाल लेना गुरुजी, क्योंकि हम लोग की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। तो जय गुरुजी संगत जी। आंटी अंकल, ये जो मेरा सत्संग है उसको शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, शेयर कर देना गुरुजी। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुजी, आप उनकी भी अंग संग रहना। और मैं क्या बोलूँ, अभी मैं थोड़ी टेंशन में हूँ, घर में थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं गुरुजी। बड़े बेटी की बहू का ऑपरेशन होने वाला है गुरुजी, तो उसकी भी थोड़ी सी, उसका ऑपरेशन अच्छे से करवा देना गुरुजी, आपसे ये अरदास है। और अच्छे से हो जाए उसका, तो ठीक रहे। उसका भी छोटा सा बच्चा है, उसको भी हार्निया हो गया, तो उसका हार्निया का ऑपरेशन होना है। और मेरा भी सिर दर्द करता रहता है गुरुजी, वो भी ठीक करो गुरुजी, हमेशा ही सिर दर्द करता रहता है। मैं आपका जल प्रसाद भी लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। गुरुजी अपना हाथ मेरे सिर पर रखो, हम सबके परिवार के ऊपर अपना हाथ रखो गुरुजी, हम लोग के अंग संग रहो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरुजी। गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुबा, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को सुप्रभात और मेरा प्यार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। स्वीकार करो दाता, स्वीकार करो। जीवन का एक अनमोल दिवस जो हमारा मंगलमय बनाते हो, हमारा हर पल हर क्षण ध्यान रखते हो। हर क्षण हर पल हमारे अंग संग रहते हो। उसके लिए कोटि 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 शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हे परमात्मा, है प्रभु, पूरी सृष्टि जो आपने बनाई है, उसमें हर एक चीजों का पल पल शुक्राना है। हम तो पामर जीव है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब कुछ आपने हमें दिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। जीवन की ये अनमोल घड़ी, जीवन में नया प्रकाश, नई उम्मीद, नई आशाएं,
ये सब देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप हर पल हर क्षण हमारे लिए ऐसा करते हो कि पल पल का शुक्राना भी कम हो जाएगा। बाबा, मेरे जीवन के आधार, मेरे परिवार के पालनहार, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला, गुरु ही है मेरा अनमोल। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना आत्मा नहीं। ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब सदगुरु जी की ही तो देन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमात्मा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु जी आपने गोविंद दियो बताए। हे परमात्मा, आप हमें हर कदम पर, हर पल पल हमें बहुत कुछ सिखाते हो। अपने बच्चों को सबसे पहले अंधकार से बाहर लाते हो और जीवन जीने के मायने सिखाते हो, अच्छी राह बताते हो और ध्यान कैसे करना, ज्ञान धैर्य और कर्म कैसे करना, वो सब सिखाते हो। ये सभी का कोटि कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना है। हे प्रभु, आप हर पल हर क्षण हमारे इतने कष्ट काटते हो, हमारी हर मुश्किल, हर बड़ी बड़ी मुसीबतों संकटों सत्संग मार्फत, सत्संग सुना सुना के वो छोटे में कर देते हो और बड़े बड़े कष्ट अपने पे लेते हो। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ एक सत्संग कल सुना था, बहुत बहुत प्यारा सत्संग है और वो गुरु प्रति, परमात्मा प्रति जो आपकी श्रद्धा और आपका धैर्य और आपकी विनम्रता, इसका मायने अपने को सिखा गया है ये सत्संग। संगत जी, एक व्यक्ति था, वो रोज सुबह उठ के अपना स्नान विधि सब करके साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए चल पड़ा। उसका उद्देश्य केवल एक ही था कि भगवान के दर्शन करने से आत्मिक आनंद प्राप्त करना। चलते चलते वो रास्ते में चलता रहता है तो उसके पैर में एक पत्थर से टकरा जाता है और वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसके वस्त्र कीचड़ से सन हो गए। लेकिन वो निराश नहीं हुआ, वो घर पर गया, वापस स्नान करके दूसरे कपड़े बदली करके और मंदिर की ओर वापस चल पड़ा। तभी वो दोबारा उधर ही गया तो वापस वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और इस बार तो उसके वो और अधिक कीचड़ से कपड़े खराब हो गए। लोग देखकर उसको कुछ ताने मारे, हंसने लगे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। वो वापस घर पर गया और स्नान करके वापस
कपड़े बदली करके तीसरी बार वो मंदिर की ओर चल पड़ा। और जब वह तीसरी बार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक अजनबी व्यक्ति वहां एक चिराग लेकर खड़ा था। तो उसने कहा, आइए मैं आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ। और ये व्यक्ति ने कुछ भी सोचा नहीं और उसके साथ मंदिर की ओर चल पड़े और दर्शन करने गए। तो दर्शन किया और उन्होंने भी ये बाहर खड़े थे जो चिराग लेके खड़ा था उनको बोला, आप भी आइए, आप भी दर्शन कर लो परमात्मा का। तब उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बोले क्यों? तो बोले नहीं, मैं काल हूँ, मैं तुम्हें 2 बार गिराया फिर भी तुमने हार नहीं मानी, ना कुछ गुस्सा हुआ, ना मुझे ना कोई गर्म होके कुछ बोला और वापस घर घर जाके वापस मतलब हमेशा वापस कपड़े चेंज करके वापस आते रहे, ना गुस्सा किया ना कुछ किया। यह आपकी श्रद्धा और आपका अड़ग विश्वास परमात्मा के प्रति देखकर परमात्मा ने आपके सभी जन्मों का पाप नष्ट कर दिया है। और अब तीसरी बार जब मैं गिराऊंगा तो परमात्मा पूरे गांव के पाप नाश कर देंगे। तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं काल हूँ। तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। तो कहने का मतलब यही है संगत जी कि जब परमात्मा पे आप अड़ग श्रद्धा और विश्वास रखते हो और आप में पूरा विश्वास है और आप अपना कर्म करने के लिए भी किसी ने आपको तकलीफ दिया फिर भी आप उस पे ऊपर क्रोध नहीं करते हो, फिर भी आप उसको बारंबार माफ करके अपना ध्येय क्या है, हमको कहाँ जाना है, वो रास्ता पकड़ते हो। इसके लिए परमात्मा भी आपकी सहाय हमेशा करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे रूबा आप की महिमा गाना मेरे तो हैसियत नहीं है, फिर भी गुरुबा हमारी भी यही लगन यही श्रद्धा आपके प्रति है बाबा। हमें हमेशा हमेशा मार्गदर्शन करते रहो बाबा, हमारी गलतियां सुधारने का मौका देते हो, हमें उसमें से भी बाहर निकालते हो। बहुत प्यार से हम गलतियां करते जाते और आप बहुत प्यार से हमें मौका देते जा रहे। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हे मेरे सदगुरु, मेरी इतनी आरजू है आपके चरणों में, मेरे साथ साथ रहना बाबा। डोले जब कश्ती मेरी बात थाम लेना। हे बाबा, हे परमात्मा, तेरा साथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूबकर भी मिल गया सहारा। हे मेरे सदगुरु, जो तेरे दर का गुलाम हो जाए, सुहानी उसकी हर सुबह शाम हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हमें भी हमारा परमात्मा साक्षात परमात्मा एक घोर कलयुग में मिले हैं और साक्षात परमात्मा मिले हैं गुरु के रूप में, और हमारा हाथ थाम के हमें अपने चरणों में बिठा के संगत बना के हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए हम हमारा पूरा जीवन का कोटि कोटि शुक्राना करेंगे तो भी कम है। हम सब बहुत बहुत भाग्यवान हैं, पूरा संगत परिवार भाग्यवान है जो परमात्मा ने हमें इतना सराहा है, इतना आसरा दिया है और हमारी हर मुश्किलों को
दूर करके हमें हमेशा खुश रखते हैं। इसके लिए प्रभु आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम। हे मेरे दया के महासागर, मेरे करुणा निधान, हे परमात्मा, हे महाशिव जी रूपी सदगुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है और लाखों खरबों शुक्राना है। गुरु जी, रात को सोने से पहले तक तेरे बच्चों पे बहुत भारी है, उसके ऊपर मौत मंडरा रहा है, उसको बहुत संकट है। ये सब सत्संग सुनते सुनते मैं कब सो गई मुझे पता नहीं चला बाबा। 12 बजे तो जागती थी रात को, उसके बाद कब सो गई पता नहीं। तो बाबा ये सब कष्ट आप ही दूर करते हो, आप ही ध्यान रखते हो और आपके ही बच्चे हैं और हमेशा आप ही ध्यान रखे हो। ये मैं रात को भी अरदास करती रही थी, सत्संग सुनते भी आपको ही बोल रहे थे। तो परमात्मा आप सब आपके चरणों में, आप जैसा रखोगे वैसा रहेंगे, आप जैसा करोगे वो मुझे मंजूर है, जो करोगे वो सब मुझे मंजूर है और आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। हे परमात्मा, आप सबका भला करो, सबके दुख दूर करो, सबका सहारा बनो दाता, सर्वथा भला करो। सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय